और शिल्पांचल की ताजा खबरों के साथ आप सभी दर्शकों का बीवी न्यूज में स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जामुड़िया के बहादुरपुर ब्लॉक के विजयनगर के रहने वाले मंगल घोष विगत सोमवार सुबह 9 बजे से घर से लापता है। रिटायर्ड रेल कर्मी 73 वर्षीय मंगल घोष हरिपुर जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वापस घर नहीं लौटे। जामुड़िया के बहादुरपुर ब्लॉक के विजयनगर के रहने वाले मंगल घोष विगत सोमवार सुबह 9 बजे से घर से लापता है। रिटायर्ड रेल कर्मी 73 वर्षीय मंगल घोष हरिपुर जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन अब तक वापस घर नहीं लौटे। जामुड़िया थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवा दी गई है, जहां पुलिस ने इस विषय पर जल्द संज्ञान लेते हुए घर पहुंचाने का आश्वासन दिया। भतीजे विपिन घोष का कहना है कि जो भी कोई उनका पता बताएगा या उन्हें घर पहुंचाएगा तो उन्हें इनाम दिया जाएगा। पता बताने वाले हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9332605334 और 8918881791। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। रानीगंज थाना में प्रशासन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां 89 बोतल रक्त संग्रह किया गया। रानीगंज थाना में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 89 बोतल रक्त लोगों ने दान किया। उन्हें आसनसोल पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी तथागत पांडे ने सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि रक्त का विकल्प नहीं है, रक्त किसी उद्योग में बनाया भी नहीं जा सकता। रक्त मानव शरीर में ही निर्मित होती है और इसे मनुष्य के ही दी जाती है, और मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। चाहे जिस रूप में हो, मनुष्य की सेवा करनी चाहिए। इस अवसर पर रानीगंज के विशिष्ट चिकित्सक डॉक्टर एस.के. माझी ने कहा कि रक्तदान से कभी नुकसान नहीं होता, शारीरिक रूप से और भी सफल होते हैं। इसीलिए मनुष्य को बिना झिझके समय समय पर रक्तदान अवश्य करना चाहिए। आपके द्वारा दी गई रक्त न जाने कितनों की जान बचाती है। संयोजक थाना प्रभारी अजय मंडल ने रक्तदान करने वालों के प्रति आभार व्यक्त किए एवं उन्हें धन्यवाद। ফিতে পেতে শিবিরের শুভ উদ্বোধন করছেন রানীগঞ্জ থানার আইসি মাননীয় শ্রী অজয় কুমার মন্ডল মহাশয়। আছেন লিংচা থানার ইনভেস্টিগেশন অফিসার মইনুলদা, আছেন অভিযুক্ত রানীগঞ্জ থানার মেজবাবু প্রবীর ধর মহাশয়, ডক্টর সুরেন্দ্র মাঝি, রানীগঞ্জ থানার কমিটির সদস্যরা এবং মাইরি একটা, হ্যাঁ একটা জানা একটা प्रेस के न्यूज के माध्यम से इन लोगों ने आगे बढ़ाया, तो हम लोग चाहते हैं आप लोग পুরোটাই ব্লাড ডোনেশন, ফুটবল খেলা, বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, যোগা, সমস্ত কিছুর উপরে আমাদেরকে পুরো ডিসেম্বর মাসটা কাজ করতে বলেছিলেন কমিউনিটি পুলিশিং এর পার্ট হিসেবে। তো এটাও একটা আমাদের কমিউনিটি পুলিশিং, আপনাদের পুলিশ পাবলিক সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য
এবং তার সঙ্গে সামাজিক যে চাহিদা ব্লাডের সেইটাকে পূরণ করার জন্য এখানে বহু পরিচিত মানুষরাও আছেন, প্লাস ইয়াং জেনারেশনে এসছেন। প্রবীর ধর আমাদের আছেন, প্রবীর দাদা দাদা হিসেবে আমাদের পরিচিতি, এবং আজকের না দীর্ঘ 30-40 বছর ধরে তার এই কর্মকাণ্ড আমরা দেখে যাচ্ছি। এবং এখানকার যারা মেডিকেল ইউনিটের লোক এসছেন বা যারা অন্যান্য সাধারণ মানুষ এসছেন আমাদের নিমচা এলাকা থেকে, কল্লপুর এলাকা থেকে, গ্রামীণ এলাকা থেকে, পাঞ্জাবিপুর থেকে এবং রানীগঞ্জের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ যে এই প্রোগ্রামটা সাকসেস করার জন্য। আর আমি ধন্যবাদ দেবো আমাদের রানীগঞ্জ থানার বড়বাবুকে এবং অন্যান্য স্টাফেদের যে যারা এই সুন্দর আয়োজনটা করেছে। এই আয়োজনটা হয়তো আমরা এসে দেখছি, কিন্তু এটা করার পেছনে যে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নেটওয়ার্ক কাজ করে সেইটার জন্য আমি পুলিশের বাড়তি কাজ যেগুলো পুলিশিং ডেলি করতে হয় সেগুলো তো করতে হয়, তার পুলিশের জন্য যে বাড়তি কাজ করতে হয় সেটার জন্য আমি এত সুন্দর আয়োজন করার জন্য আবার রানীগঞ্জ থানার আমার স্টাফ এবং বড়বাবুকে ধন্যবাদ জানাই। আবার প্রবীরদাকে একবার ধন্যবাদ জানাই, যেখানেই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে যায় সেখানে প্রবীরধরকে আমরা সব জায়গায় চিনি। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। ওনার ইন্সপিরেশনেই আমরা এটা করেছি আর কি। আমাদের সব থানাতেই বিভিন্ন সময় করা হচ্ছে। পুরো ডিসেম্বর মাসটাই আমরা বিভিন্ন রকমের আমাদের যে কমিউনিটি পুলিশিং আছে তার পার্ট হিসেবে এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, যাতে এই সময় অনেক সময় ব্লাডের একটু ক্রাইসিস হয়, তো সেই জন্য এই ক্যাম্পটা করে যতটুকু মানে উপকার করা যায় সেটাই আর কি। পুলিশের যে কাজ রুটিন কাজ আছে তার বাইরেও আমরা এই ধরনের পুরো ডিসেম্বর মাস জুড়ে এই ধরনের কাজগুলো করছি। আমাদের পুরো এন্টায়ার পুলিশ কমিশনার আমাদের সিপি সাহেবের ডাইরেক্ট ইন্সপিরেশন, মানে রক্তের চাই তো না, অনেকগুলো ক্যাম্প আমরা বিভিন্ন রকম অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প এর আগে নিমচাতে আমরা করেছি, তারপরে জামুরিয়াতেও হয়েছে, ফুটবল খেলা হয়েছে। এটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প পার্ট অফ কমিউনিটি পুলিশিং হিসেবে এটা আমরা করছি আর পুরো কমিশনারেটেড মানে কমিশনারেট জুড়েই হচ্ছে। किसी को भी एक पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि सरकारी ब्लड बैंक के माध्यम से आपके पास जो क्रेडिट कार्ड रहता है वो 1 साल का वैलिड रहता है। जंगल महल से लेकर दार्जिलिंग के पहाड़ तक 87 सरकारी ब्लड बैंक है। आपको बिना पैसा में, ये हमारा चैलेंज है, बिना पैसा में आपको खून तो प्राप्त कराएंगे। मैं इस मंच से खड़ा होकर बोल रहा हूँ, अगर इस रानीगंज अंचल में कोई भी इंसान हम लोग के पास आया और खाली वापस चला गया, वैसा कोई भी इंसान है तो मैं प्रदीप धर यहाँ पर मंच में उपस्थित हूँ, आके हमको बोले दादा आपके पास दिया था, हमको रक्त नहीं मिला। एक बात हमारा है, फूल लेके दर्शन नहीं हो, फूल लेके बिजनेस नहीं हो, ये हमारा हृदय का दान ब्लड, ये रक्त को केना बेचा होता नहीं है। एक पैसा 1 रुपया भी खून का नहीं लगता है। एक बात आप लोग को समझा दे रहा हूँ। मैं फिर आज का रक्तदान शिविर में जो लोग उपस्थित हुए सबका हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर थाना के डीएसपी वसुंधरा पार्क में बुधवार की सुबह खून से लथपथ 40 वर्षीय शोभा रानी दास का शव मिला। आखिरकार ये हत्या है या कुछ और, फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। दुर्गापुर थाना के डीएसपी वसुंधरा पार्क में बुधवार की सुबह खून से लथपथ महिला का शव पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर दुर्गापुर महकुमा अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महिला की शिनाख्त 40 वर्षीय शोभा रानी दास के रूप में हुई है। मृतक महिला पुलिस समय समय पर मौके पर पहुंच रही है। शुरुआत में पुलिस को शक था कि बदमाशों ने महिला की कहीं और हत्या की हो और उसे पार्क में छोड़कर भाग गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह पार्क 6 वर्ष पूर्व डीएसपी ने बनाया था। पार्क में रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है। डीएसपी अधिकारियों ने कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है। पार्क में शाम से ही आपराधिक गतिविधियां चलती रहती हैं। इसीलिए यदि आप दिन के उजाले में सड़क पर चलते हैं
तो भी स्थानीय लोग अंधेरे में सड़क से बचते हैं। पहले भी यहीं से शव मिले हैं। एसीपी ध्रुव ज्योति मुखर्जी ने कहा कि मृत महिला की पहचान हो गई है। পোস্টমর্টমে যা এখনো সব পরিচয় তো জানা যায় এখনো যায়নি, আমরা চেষ্টা করছি। স্যার সার্চ ইজ অন। প্রাইমারলি ডেড বডি দেখে যেটা মনে হলো যে ভারী ঠিক আছে, এখন পোস্টমর্টম অটোপসি না হলে কিছু বোঝা যাবে না। হোক কি জানতে পারলেন এখানে? অটোপসি হোক, তারপরে আমরা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছি। অটোপসি হোক আগে। এটা কি কোনো মহিলার মৃতদেহ? হ্যাঁ, মহিলা, অবভিয়াসলি মহিলা। বলছি স্যার এটা কি আসানসোল জেলা হাসপাতাল হবে না? সম্ভবত দুর্গাপুর, তারপরে সেরকম যদি হয় ওনারা পাঠাবে। স্যার প্রাথমিকভাবে কিছু মনে হচ্ছে? এখন বলা যাবে না কিছু। मृतक महिला के पति प्रदीप दास ने बताया कि मंगलवार की शाम घर से कुछ रुपए लेकर बाहर निकली थी। কিছু বুঝতে পারছি না, পুলিশ তদন্ত করুক, ওনারা তো সব আমাদের তোমাদের গার্জেন, ওনারা তদন্ত করুক, বার করুক, দোষীদের আমি শাস্তি চাইছি। এইভাবে কেউ মারে, হাত ভেঙেছে, গলায় ফাঁস। কালকে কখন থেকে? কাল 3:30 সময়। আমি তো চাই না, আমিও সকালে একবার বেরিয়ে যাই, একবারে সন্ধ্যাবেলায় ঘর ঢুকি। ভাগ্নি বললো যে 3:30 নাগাদ বেরিয়েছে, একটা চাদর ঢাকা নিয়ে, তারপর থেকে ফোন সুইচ অফ। মোবাইল ফোন নিয়ে বেরিয়ে? হ্যাঁ, মোবাইল ফোন নিয়ে বেরিয়েছে। ফোনটা উদ্ধার হয়নি, না ফোন পাওয়া যায়নি। ফোন পাওয়া যায়নি, গলায় চেন ছিল পাওয়া যায়নি, আংটি ছিল। আপনার ফোন করে কি কাউকে কেউ মনে হচ্ছে কিছু একটা ব্যাপার ফোন করে ডেকেছে, তারার মধ্যে বেরিয়ে গেছে। দিদি মাইক্রো ফাইন্যান্সের বিভিন্ন ইয়েতে লোন ফোন মহিলাদের দিত, সেই সংক্রান্ত দিত না, মানে কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে ছিল আর কি। হ্যাঁ, লোন ফোন করে সেই দিত। সংক্রান্ত বিষয় আমি কিছু বুঝতে পারছি না দাদা, আমি জানি না কি হচ্ছে। কেউ কি কোনো রকম কোনো হুমকি দিত বা কোনো না, পুরনো কিছু শত্রুতা? পুরনো শত্রুতা তো বুঝতে পারছি না দাদা। সব এখন আমি প্রশাসনের পরে ছাড়লাম, ওনারাই আমাদের গার্জেন। বুঝছি, ওনাকেই বললাম, ওনারাই তদন্ত করুক, ওনারাই বার করুক। কিছু বুঝতে পারছি না। কালকে কখন বেরিয়েছিল? কালকে 3:30 নাগাদ বেরিয়েছিল। কোনো ঝামেলা বা কিছু? না, ঘরে কোনো অশান্তি হয়নি, ঘরে কোনো ঝামেলা হয়নি। ঘরে কে ঝামেলা করবে? ভাগ্নি সবই তো সবাই কাজের মধ্যে বেরিয়ে যেত, ওই ঘরে থাকতো একা, কার সঙ্গে কী করবে? কি নাম আপনার? আমার নাম মিঠুন দাস। আপনার কে হয়? আমার দিদি। मृतक के भाई मीठू दास ने बताया कि वह एक फाइनेंस कंपनी में काम करती थी। घर में किसी के साथ कोई विवाद नहीं था, बल्कि फाइनेंस कंपनी में किसी के साथ विवाद हुआ होगा, इसकी जानकारी हमें नहीं है। उनका मोबाइल फोन, सोने की अंगूठी और गले का हार पुलिस को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पर उन लोगों का पूरा भरोसा है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी इस पार्क से पुलिस को शव मिले हैं। দাস, যার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে কিছুক্ষণ আগে, কি ঘটনা শুনেছো তোমরা? ঘটনাটা শুনলাম সকালবেলায়, খবর পেলাম যেটা, যে ওর ভাইয়ের ফোন করেছিল সকালবেলায়, যে থানা থেকেও খবর পেলাম যে হচ্ছে আপনার ইস্কন মন্দিরের পাশে পড়ে রয়েছে, সেটাকে হচ্ছে মার্ডার করা হয়েছে এবং মুখটাকে যেভাবে থেতলে করেছে অমানবিক বলা যায়। যেই করেছে, যে দোষীদের যাতে উপযুক্ত যাতে শাস্তি হয়, এই ধরনের ঘটনা যাতে কারোর পক্ষেই যাতে না হয়। পুলিশ হচ্ছে ইনকোয়ারি করছে, তদন্ত করে যে প্রকৃত দোষী তাকে হচ্ছে নিয়ে আসুক সামনে এবং তার উপযুক্ত সাজা দিতে চলে চাইছে। যে একটা নিডি পরিবার, যেটা জানা গেল যে তোমাদের প্রতিবেশী, কি কারণে হঠাৎ করে খুন করা হলো, তাকে এটা কি মনে হচ্ছে আমাদের প্রাথমিকভাবে? অথবা মনে হচ্ছে কারোর সাথে কোনো শত্রুতা হলেও হতে পারে। যতক্ষণ না পুলিশ পুরো ইনকোয়ারি করছে, ইনকোয়ারি করে প্রকৃত সত্যতা বের করছে, ততক্ষণ তো বলা যাবে না যে কি অ্যাকচুয়াল। ঠিক আছে, আমরা যেটা অনুমান করছি সেটা মার্ডার হয়েছে, এটা তো ক্লিয়ার। কে করেছে সেই উপযুক্ত ব্যক্তিকে যাতে পুলিশ ইনকোয়ারি করে যাতে তুলে নিয়ে আসে এবং তাকে উপযুক্ত যাতে সাজা দেয়। থানায় তোমরা এসছো, পুলিশের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হবে না? পুলিশ তো বলছে আমরা উপযুক্ত যে দোষী আছে তাকে আমরা হচ্ছে সাজা দেবো এবং হচ্ছে যে এই ধরনের ঘটনা চলছে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবো, আমাদের উপর ভরসা রাখবে। আর আমরা ওদের উপর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। গোষ্ঠীর সাথে বলতে আর কি লোন ফোন যেগুলো হয়, বন্ধন ফন্ধন যেগুলো হয়, সেগুলো মহিলাদের মধ্যে, সেই গোষ্ঠীর মধ্যে ছোটো মাইক্রো ফাইন্যান্স। হ্যাঁ, এবং হচ্ছে মেয়ের বিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে ধার দেনা করে লোন ফোন করে হচ্ছে মেয়ের বিয়ের টাকা কিছু জোগাড় করেছিল। তার মধ্যে তো মেয়ের বিয়ে নিয়ে মাকে তো হারালো মেয়ে, এবং যে ফেব্রুয়ারিতে বিয়ে, সে বিয়েটাকে কীভাবে করেছে আমরা ওই পরিবারের প্রতি আছি, সামনে পাশে আছি। সবসময় যে রকম সহযোগিতা আমরা নিশ্চয়ই করবো তাদের। কি নাম? আমার নাম রাজেশ। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर के कोकोवेन थाना अंतर्गत स्टेशन बाजार इलाके में मंगलवार देर रात दुकान का छत तोड़कर चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया।
दुर्गापुर के कोकोवेन थाना अंतर्गत स्टेशन बाजार इलाके में मंगलवार की देर रात दुकान का छत तोड़कर अपराधियों ने लैपटॉप सहित लाखों के मोबाइल लेकर फरार हो गए। बुधवार दुकान में चोरी होने की खबर मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं मामले की जांच शुरू कर दी। इलाके में चोरी की घटना से आसपास के लोगों में भय व्याप्त हो गया है। उल्लेखनीय है कि स्टेशन बाजार में शिवराज रजक एवं सत्य सिंह शुक्ला का मोबाइल दुकान है। हर दिन की भांति मंगलवार की देर रात करीब 10 बजे दुकान बंद कर सभी अपने घर वापस लौट गए। सत्यजीत सिंह शुक्ला ने बताया कि बुधवार की सुबह स्टाफ दुकान खोलने आया तो देखा कि दुकान के भीतर रखे सभी मोबाइल गायब है। चोरों ने दुकान के ऊपर एल्वेस्टर का छत तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश किया था एवं दुकान में लगाए गए सभी सीसीटीवी का मुंह ढक दिया। चोरों ने दुकान में रखे लैपटॉप, सीसीटीवी के हार्ड डिस्क सहित कैश बॉक्स में रखे नकदी एवं लाखों के महंगे एंड्रॉइड मोबाइल फोन की चोरी कर फरार हो गए। घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। इस बारे में पुलिस ने बताया कि घटना की शिकायत मिली है। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और राते दुकान बंद করে গেলাম, তারপর সব তো ঠিকঠাকই গেলাম, সব গুছিয়ে গুছিয়ে অনেকগুলো ফিচার্স ফোন ছিল এখানে, আমার লাইফ টাইমই ছিল অনেকগুলো, তারপরে আমার অনেকগুলো অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলই ছিল। সকালে এসে যখন তালা খুলছে দোকানের ছেলেটা তখন দেখছি এখানে ফাটা আছে আর ক্যাশ আমার খোলা আছে, ক্যাশে অনেক টাকাগুলো ছিল। এখন দেখছি কিছুই নাই, সব পুরো ফাঁকা করে দিয়েছে। মোবাইল ছাড়া ক্যাশ ছিল, লাইফ টাইমই ছিল আমার, আবার ল্যাপটপ ছিল নতুন, আর সব চেক করতে হবে কি আছে কি না। কত টাকা মতো আনুমানিক জিনিস ছিল ওইটা তো বুঝতে পারছি না, এখন আমাকে সব ক্যালকুলেশন করতে হবে তারপর বলতে হবে। কত টাকা মতো ছিল? অমনি হবে, কত 5-6 লাখ টাকার মতন হবে, বেশি হতে পারে। দোকানে দেখুন সিসিটিভিও রয়েছে, সিসিটিভিগুলো দেখুন আপনি সব ঘোরানো আছে, একটা সিসিটিভি আমার নাই, দেখুন চারটেও সব যে জায়গাতে নেই, সবার ফিঙ্গারপ্রিন্টও আছে এখানে, হাত দিয়েছে। সিসিটিভি তো হার্ড ডিস্ক আছে, হার্ড ডিস্ক ছিল, হার্ড ডিস্কটা এখন নাই, হার্ড ডিস্কটাও নিয়ে চলে গেছে। পুলিশ এসেছিল? হ্যাঁ পুলিশ এসেছিল, এখন আছেন পুলিশের স্টেটমেন্ট নিয়েছেন সব। কি নাম তুমি? সুরজ রাজা, দোকান মালিক। এই রাতে আমরা গুছিয়ে গিয়েছি সব দোকান, এখন সকালে যখন এসছি তখন দেখছি ওখানে ভাঙা আছে, ভেঙে সব মাল ফাল নিয়ে চলে গেছে। ল্যাপটপ ছিল, এগুলো সব চকটাই নিয়ে চলে গেছে, যা যা ছিল। আমরা এমনি মাল রোজ এভরিডে নিয়ে যাই, ম্যাক্সিমাম মাল নিয়ে চলে যাই, কিন্তু কিছু মাল থাকে এখানে, ওইগুলোই নিয়ে গেছে। মোবাইল নাম্বার অফ পিসেসে যদি বলি, ওটা এখন ক্যালকুলেট করতে হবে অ্যাকচুয়ালি আমাদের, এখন পুরো ক্যালকুলেট করা হয়নি। আনুমানিক কত টাকা মূল্য হবে? আর কি আছে মোবাইল ছাড়া? মোবাইল ছাড়া ল্যাপটপ, হার্ড ডিস্ক, আর আপনার যে ক্যামেরা যে সেভ থাকে যেগুলোতে, আবার আপনার ইন্টারনেটের যা ডিভাইস আছে, এভরিথিং। সিসিটিভি যে নিয়েছে এবার বলতে পারছি না, কিন্তু সিসিটিভি প্রত্যেকটা জিনিস ঘুরিয়ে দিচ্ছে আগে এসে, আর যেটা সেভ থাকে ওটা হার্ড ডিস্কটাও নিয়ে গেছে, আর ইন্টারনেটের যে ডিভাইসটা থাকে ওই ডিভাইসটাও মানে তুলে নিয়ে চলে গেছে, যাতে কিছু দেখা না যায়। 10:30 11টার সময় আমরা প্রত্যেক দিনই বন্ধ করি, কালকে সেই অমনি বন্ধ করা হয়েছে। সকালে আমার ছেলেরা যখন দোকান খুললো তখন দেখছে যে এইভাবে আছে, মানে মাল নাই, আর ওইখানে ভাঙা আছে ওই জায়গাটা। হ্যাঁ পুলিশ এসেছিলো, এখনও আছে পুলিশ, স্টেটমেন্ট নিচ্ছে, বললো যে দেখছে, এসছে পুলিশ। মোবাইল ছাড়া আর কিছু থাকে? মোবাইল ছাড়া ল্যাপটপ গেছে, ক্যাশ গেছে, আর অনেকগুলো অ্যাক্সেসরিজও গেছে, যে অ্যাক্সেসরিজ কস্টলি যেগুলো ছিল, ব্র্যান্ডেড জিনিসগুলো, প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে গেছে। কি নাম আমার? সত্যশীল শুক্লা। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बढ़ते ठंड को देखते हुए माल्या मेमोरियल संस्था के तत्वाधान में राजबाड़ी राज परिसर में सैकड़ों महिलाओं को ऊनी वस्त्र और शॉल प्रदान किए गए। रानीगंज के माल्या मेमोरियल संस्था के तत्वाधान में राजबाड़ी राज परिवार में 300 महिलाओं को ऊनी वस्त्र एवं शॉल प्रदान किए गए।
संस्था के अध्यक्ष अनुराधा माल्य शराफ ने कहा कि शीतकाल के मौसम में कई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं ठंड के कहर से काफी तकलीफ में पड़ती हैं। इसीलिए प्रत्येक शीतकाल के मौसम में महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों को ऊनी वस्त्र प्रदान करते हैं। उन्हें चिकित्सा सेवा देने की भी हमेशा कोशिश करते हैं। इस अवसर पर सोनिया माल्या ने कहा कि जरूरतमंद लोगों की मदद करके हमें काफी खुशी मिलती है। इस तरह के कार्य निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे। मुख्य रूप से उपस्थित विठल माल्या ने कहा कि शीतकाल के मौसम में निरंतर चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। सोसाइटी की ओर से पहले के जैसे हम लोग शॉल वितरण कर रहे हैं और सर्दियों में हर साल हम लोग करते हैं। और इस साल भी कोविड के पैंडेमिक के लिए हम लोग थोड़े ज़्यादा लोगों को इस बार दे रहे हैं। और ब्लैंकेट्स की जगह उनका इच्छा था, हमारे पास रिक्वेस्ट था कि हम ब्लैंकेट्स नहीं देके शॉल्स दें। उसी का हम लोग आज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मालवीय मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से हम लोग कम्बल की जगह सबको रिक्वेस्ट कर रहे थे शॉल के लिए, इसीलिए हम लोग इस बार शॉल दे रहे हैं। और इस बार थोड़ा ज़्यादा करके शॉल दे रहे हैं। डिमांड था थोड़ा सा रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की,
हमारा पता है NSB रोड अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अंडाल के पड़ोसिया फुटबॉल मैदान में 18वां संथाल भाषा विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई और 120 जरूरतमंद परिवारों में फ्लाइंग इंडिया फाउंडेशन ने बांटे कंबल। आदिवासी सुशेर गाउता समाज सेवी संस्था और फ्लाइंग इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त सहयोग से क्रुस्तोडिया एरिया के पड़सिया कोलियरी फुटबॉल मैदान में 18वां संथाल भाषा विजय दिवस के अवसर पर आदिवासियों ने विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके अलावा 120 जरूरतमंद परिवारों में कंबल भी बांटे गए। इससे पहले कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभात फेरी और सुशेर गाउत समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष बाबूराम माझी ने झंडा तोलन कर शहीदों को पुष्प अर्पित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उदीप सिंह के हाथों कंबल भी बांटे गए। इस अवसर पर आदिवासी सुशेर गाउता समाज सेवी संस्था के सचिव किशन माझी ने कहा कि हम आदिवासी सरकार से मांग करते हैं कि आलोचकी भाषा की स्कूल शुरू होनी चाहिए ताकि हमारे समाज के बच्चे आदिवासी की पढ़ाई कर सके। आज का कार्यक्रम क्या आप लोगों का? आज का है 22 दिसंबर संथाली भाषा दिवस। और आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं? में जैसे कि अपना अपना यहाँ जो लैंग्वेज है कि हिंदी, बंगाली, इंग्लिश जो भी होता है इसमें हम लोग का भी 2003 साल 22 दिसंबर को सरकार ने मान्यता दी थी कि संथाली भाषा से भी आदिवासी लोग या संथाली भाषाभाषी लोग पढ़ लिख सकते हैं। पंडित रघुनाथ वर्मा इसका निर्माता है, तो इसलिए मातृभाषा से पढ़ाई लिखने में हम लोग आदिवासी समाज का सबको लड़के बच्चों को पढ़ाने में सुविधा रहेगा। इसी के माध्यम इसीलिए हम लोग अपना ये 22 दिसंबर अगर पश्चिम बंगाल में हम लोग का पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में या जम्मू क्षेत्र में स्कूल अगर गाँव में पड़ा में दिया जाए मीडियम स्कूल, तो हम लोग का समाज का भी जितना भी आदिवासी और संथाली मीडियम भाषाभाषी लोग अपना मातृभाषा में पढ़ने में सुविधा होता और आगे उन्नति कर उच्च स्तर में जाने के लिए सुविधा होता। जो कि हम लोग मातृभाषा छोड़कर अदर भाषा में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा पढ़ने लिखने में हम लोग को उच्च स्तर पहुँचने में समय लगता है, दिक्कत होता है, परिश्रम करना पड़ता है, जो कि पीछे अभी तक रह गया है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है किशन माझी। आप सेक्रेटरी है ना? अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज। 17 सूत्री मांगों को लेकर माकपा का दुर्गापुर नगर निगम के समक्ष धरना प्रदर्शन। मांगों का पत्र मेयर के दरवाजे में रखकर माकपा के प्रतिनिधि मंडल वापस आए। 17 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को माकपा की ओर से दुर्गापुर नगर निगम के समक्ष धरना प्रदर्शन कर माकपा के एक प्रतिनिधि मंडल दल ने मेयर के गैर हाजिरी के कारण उनके दरवाजे में पत्र लटकाकर वापस लौट आए।
माकपा नेता पंकज राय सरकार ने धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि दुर्गापुर में BOGL फर्टिलाइजर्स FCI फैक्ट्री बंद हुआ था। उस समय केंद्र में सरकार भाजपा की थी, लेकिन यहाँ की भाजपा के नेता सोनार दुर्गापुर बनाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा नेता यह सब फैक्ट्री खोलने के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। यहाँ तक के कोल रेल सेल को निजीकरण करने की साजिश कर रही है। दुर्गापुर एलॉय स्टील प्लांट को निजीकरण कर दिया गया है। भाजपा के लोग दुर्गापुर नगर निगम चुनाव में वोट लूट की बातें कह रहे हैं, मगर वोट लूट का महानायक आज उनके दल में है। जो लोग भाजपा में शामिल होकर बड़ी बात कर रहे हैं, वे भी अपने वोट के बूथ पर 2017 के चुनाव में वोट लूट करवाए थे। उन्होंने कहा कि दुर्गापुर नगर निगम में तृणमूल कांग्रेस नेता अवैध कामों को अंजाम दे सके, इसके लिए दुर्गापुर नगर निगम के मेयर दिलीप अगस्ती को दबाव देकर इस्तीफा मांग लिया। शहर में अवैध रूप से दबे हुए फाइलों पर काम चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य साथी कार्ड अनेक गरीब परिवार को नहीं मिला। इतने सारे अवैध धंधे यहाँ पर चल रहे हैं। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। पानवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुलांचल तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में बहुलांचल महिला बंग जननी की सभा का आयोजन किया गया। पानवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुलांचल तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में बहुलांचल महिला बंग जननी की सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में महिला बंग जननी को पूरे अंचल में मजबूत बनाने और बंग जननी महिला तृणमूल कांग्रेस कर्मियों की आगामी लोकसभा चुनाव में अहम जिम्मेवारी सौंपी गई। साथ ही पानवेश्वर ब्लॉक के बहुला अंचल और ब्लॉक कमेटी के नवनिर्वाचित कमेटियों के नाम की जानकारी दी गई, जिसमें बहुला अंचल तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तम मिर्धा, पानवेश्वर ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस के कन्वेनर व बहुला ग्राम पंचायत प्रधान वीर बहादुर सिंह, बहुला अंचल युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष एमडी सदरुद्दीन हुसैन, पानवेश्वर ब्लॉक महिला तृणमूल कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष व कन्वेनर दीपू पाल, इसके अलावा महिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिमा बावरी, बहुला अंचल SC/ST सेल के अध्यक्ष कृष्णा भुइया और सुगदा हेमरम को महिला तृणमूल कांग्रेस के जिला और ब्लॉक कोर कमेटी के सदस्य के नामों की घोषणा इस सभा के माध्यम से की गई। साथ ही आने वाले लोकसभा को देखते हुए बंग जननी महिला तृणमूल कांग्रेस की बैठक आगामी 24 दिसंबर को परास्कुल सिटी, 25 दिसंबर को बहुला अंचल बंग जननी की बैठक करने का निर्णय लिया गया। इस सभा में बहुला अंचल तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तम मिर्धा, बहुला ग्राम पंचायत प्रधान वीर बहादुर सिंह, बहुला अंचल युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष एमडी सदरुद्दीन हुसैन, TMCP ब्लॉक अध्यक्ष गौरव पाल, सुभोजीत मंडल, राजकुमार पाल, MD मिराज हुसैन, नीलेश कुंडू, प्रोसून बैनर्जी, रोशनी खातून, मेघनाथ आचार्य जी, बंग जननी अंचल अध्यक्ष जोसली मुर्मू आदि मौजूद रही। महिला तृणमूल कांग्रेस संगठन और बंग जननी संगठन दुटा संगठन के मिले दले जा কর্মসূচি সেই কর্মসূচিকে আমরা পালন করব, সেটা নিয়ে আজকে আমাদের মিটিং। আর আপনাদেরকে অবগত জানাই, আপনারা জানেন বিগত 1 মাস আগে
আমাদের দল তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসে ব্লক কার্যকরী সভাপতি হিসাবে দীপু পালকে দায়িত্ব দিয়েছে। দীপু পাল নো ডাউট, আমি একটা বহুলা তৃণমূল কংগ্রেস একটা কর্মী হিসাবে বলি, দীপু পাল নো ডাউট আমাদের ব্লকে একটা অ্যাসেট। এই মহিলাটা এত স্পিরিট, কাজ করা এত স্পিরিট, সে দল তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসে কার্যকরী সভাপতি হিসাবে দীপুকে দায়িত্ব দিয়েছে। অঞ্চল সভাপতি হিসাবে প্রতিমা বাউরিকে দায়িত্ব দিয়েছে। প্রতিমা বাউরি দলে কাজ করা মহিলা, রাজনীতিকভাবে সচেতন মহিলা। দল কিন্তু प्रतिमा बाउरी के महिला तृणमूल कांग्रेस से दायित्व दिए। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट पीवी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।